हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। भाई लास्ट टाइम हमने द स्नेक एंड द मिरर देखा था, क्वेश्चन आंसर सेशन उसका खत्म हो गया था। तो स्नेक एंड द मिरर के बाद हमारे पास एक बढ़िया सी पोयम है, उसकी हम बात करेंगे, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। भाई ये जो पोयम है वो बढ़िया है, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप में से कोई क्रिश्चियन है या आपको क्रिश्चियन के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है तो सेंट पीटर जो है, ठीक है, सेंट पीटर जो संत थे, ठीक है, जो महात्मा थे, वो जो है वो पहले क्या करते थे बेटा, संत लोग तो है ना, वो मांग के खाते थे, दीक्षा दीक्षा दे दो माई, ऐसा बोलते थे। और वो खाना मांग के खाते थे। तो ऐसी एक स्टोरी है यहाँ पे, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जहाँ पे ये जो पोयम है, ठीक है, वो हमको एक ओल्ड लेडी के बारे में बता रही है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। उनकी लालच की वजह से, वो लेडी की लालच की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा आ गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पोयम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। चलिए पूरी पहले एक बार पढ़ लेते हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another, and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Written by Phoebe Carey. Phoebe मत बोलना बेटा, Phoebe Carey, okay? Phoebe Carey. ओके, चलिए अब पैराग्राफ समझा देता हूं मैं आपको। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थ में जो जमीन थी उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्थलैंड मतलब जो नॉर्थ का एरिया है, ठीक है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, भाई नॉर्थ का जो एरिया होता है, हम जियोग्राफिकली देखने जाएं तो नॉर्थ का जो एरिया होता है उसमें डेज के जो आवर्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, रात ज्यादा होती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। भाई विंटर में नाइट बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, विंटर में नाइट बहुत लंबी होती है और वो लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं। वो पूरा सो ही लेते हैं फिर भी रात होती है, ठीक है। आप सोते हैं रात को, तो जब उठते हैं तो सुबह होती है ना, वहां पे रात बहुत लंबी होती है, तो आप उठते हैं फिर भी रात ही होती है, ठीक है। तो दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, वो पूरी रात सो नहीं सकते हैं, ठीक है, पूरी रात पास सो के पास नहीं कर सकते हैं वो। तो ऐसा हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में हमको इंट्रोडक्शन दिया है वो जमीन का, वो एरिया का,
ठीक है, जो नॉर्थलैंड में है, जहाँ पे डे के आवर्स कम होते हैं, रात के आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं विंटर में, और पूरी रात सो ही नहीं पाते हैं वो, इतनी बड़ी रात होती है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. हार्नेस करना मतलब बांधना। बेटा रेनडियर एक टाइप का डियर ही होता है, ठीक है, लेकिन वो आपको बर्फीले जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलता है रेनडियर। तो स्विफ्ट फास्ट होता है, रेनडियर फास्ट भागता है, ठीक है। आपने सेंटा क्लॉज के आगे जो डियर देखे होंगे ना, वो रेनडियर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे लोग लोग रेनडियर को बांधते हैं, उसके पीछे गाड़ी लगाते हैं, स्लेज स्लेज होता है ना जो जिसपे बैठते हैं आप, और रेनडियर भागता है तो आप भी उसके पीछे पीछे, वो बंधा हुआ होता है तो आप जाते हैं पीछे पीछे, तो उसको स्लेज बोलते हैं। जब स्नो पड़ता है तो ये करते हैं वो लोग, रेनडियर को हार्नेस करते हैं स्लेजिस से, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो चिल्ड्रन वो टाइम पे इतने स्नो पड़ता है, ठंडी होती है, तो चिल्ड्रन कैसे लगते हैं, भालू के बच्चे जैसे, बेयर्स कब्स, भालू के बच्चे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे फरी क्लोथ्स पहने होंगे, है ना, रोएदार, फरी मतलब रोएदार क्लोथ्स पहने होंगे, मोटे मोटे जाड़े। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। भाई पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोएट यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे पोएट कह रही है कि भाई ये बच्चों को एक क्यूरियस मतलब एक जानने लायक स्टोरी वो बताते थे। मैं नहीं मानती कि वो सही है कि नहीं, ठीक है, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। फिर भी आपको मैं ये स्टोरी बता देती हूँ, सॉरी। तो आपको कुछ लेसन या कुछ सीख उसमें से मिलेगी। इफ आई टेल द टेल, टेल मतलब स्टोरी, टू यू, आपको मैं ये स्टोरी बताऊं तो कुछ ना कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। Once when the good Saint Peter lived in the world below, अब lived in the world below मतलब वो एक्चुअली तो भगवान थे, ठीक है, सेंट पीटर भगवान थे। lived in the world below, नीचे के जमीन पे रह रहे थे जब, ठीक है, जब गुड सेंट पीटर जमीन पे रह रहे थे, ठीक है, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो वो प्रीचिंग, बेटा प्रीचिंग करना मतलब प्रचार करना, है ना, सिखाना, धर्म धर्म सिखाना, उसको बोलते हैं प्रीचिंग करना। तो वो प्रीचिंग करते थे सेंट पीटर, चल के जाते थे जहां पे भी, जस्ट एज ही डिड यू नो, आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ऐसे भगवान थे, सेंट पीटर थे, सेंट पीटर जो थे वो भगवान थे, और वो जो थे वो प्रीच करते थे, ठीक है, सब कुछ धर्म सिखाते थे सबको। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. वो कॉटेज के एक बड़ी सी झुपड़ी के पास आए, ठीक है, दरवाजे पे आए, वो पूरा अर्थ घूमते थे मतलब वो ट्रैवल करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ट्रैवलिंग करते थे। और वो एक घर पे आके रुके जहां पे वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। तो एक जो औरत थी, एक जो लेडी थी, ठीक है, वो केक्स बना रही थी वहां पे, ठीक है, वो केक्स बना रही थी और बेक कर रही थी हर्थ पे। हर्थ मतलब वो जो भट्टी जैसा होता है ना, उसको हर्थ बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो बेक कर रही थी केक्स को। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, बेटा ये जो सेंट है वो तो घूमते रहते हैं, है ना, तो उनको कुछ खाने के लिए ना भी मिले, मिले भी सही तो मांग के खाते हैं वो। तो पूरे दिन, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, डे खत्म ही हो चुका था, लेकिन पूरे दिन उनको कुछ खाना नहीं मिला था, ठीक है, फास्टिंग कर रहे थे। फास्टिंग मतलब वो हम बोल सकते हैं कि वो उन्होंने कुछ नहीं खाया था, राइट, व्रत रखा था ऐसा बोल सकते हैं हम, मतलब व्रत तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूरे दिन उनको कुछ मिला नहीं, तो उसको हम फास्टिंग बोलते हैं। जब हम कुछ नहीं खाते हैं और हमको भूख लगती है तो वो हम फास्टिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट पीटर थे वो पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ठीक है, और फास्टिंग हो रहा था उनका। एंड बीइंग फेंट, फेंट मतलब अब उनको चक्कर जैसा आने लगा था, मतलब भूख के मारे, बहुत ही भूख लगी थी उनको, बहुत ही भूख लगी थी, उनको चक्कर जैसा आ रहा था। He asked her from her store of cakes to give him a single one. उससे सेंट पीटर ने वो लेडी को पूछा, ठीक है, कि आपके स्टोर ऑफ केक्स में से मुझे एक दीजिए, फॉर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि एक केक मुझे दीजिए। So she made a very little cake, but as it baking lay,
She looked at it and thought it seemed too large to give away. तो वो लेडी ने एक छोटी सी केक बनाई, ठीक है, और बेकिंग पे रखी, वो भट्टी पे रखी बेक करने के लिए। वो केक के सामने उसने देखा और उसने ऐसा सोचा कि वो बहुत ही बड़ी है देने के लिए। उसने क्या सोचा, वो केक बहुत ही बड़ी है देने के लिए, ठीक है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो उसने एक और केक बनाई, needed मतलब बनाई, ठीक है, she made another, therefore she needed another, एक और केक बनाई, and still a smaller one, और छोटी एक केक बनाई, छोटी सी एक केक बनाई, but it looked, जब उसने भट्टी पे रखी वो और उसने घुमाई, केक को दोनों साइड से बेक किया जाता है, तो वो पहले बेक किया जाता था दोनों साइड से, तो घुमाई उसने, तो उसको, वो लेडी को ऐसा ही लगा कि वो जो केक है वो पहले जो बनाई थी उतनी ही बड़ी है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो उसने एक इतना सा छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है, वो आटे का, वो डो का जिससे केक बनती है, ठीक है, और एंड रोल्ड किया उसको और रोल्ड इट फ्लैट, चपटा बना दिया, एकदम पतला सा चपटा, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और वेफर की तरह उसने बेक किया उसको, ठीक है, थिन इतना पतला, एक तो इतना पतला होता है, इतना पतला और इतना मोटा, ठीक है, तो उसको भी बेक किया उसने, फिर भी बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, अब वो भी उसको नहीं देना था। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो उसने क्या बोला कि मेरी जो केक है जब मैं खाती हूँ, मेरे खुद के लिए जब मैं खाती हूँ तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन देने के लिए बहुत बड़ी लगती है, देने के लिए बहुत बड़ी लगती है। तो उसने वो जो केक्स तीनों बनाई थी वो केक शेल्फ पे रख दी, उसके वहां पे साइड में रख दी। सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। Then the good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, ठीक है, वो बहुत ही गुस्से से भर गए थे क्योंकि वो भूखे थे और उनको चक्कर भी आ रहे थे, ठीक है, और श्योरली ऐसी वुमन, इतनी ग्रीडी वुमन, इतनी लालची वुमन was enough to provoke a saint. एक साधु कभी गुस्सा नहीं होता बेटा, एक साधु अपने धैर्य और शांति के लिए जाना जाता है, और सेंट पीटर तो बहुत ही धैर्य और शांति वाले थे, फिर भी इतनी ग्रीडी वुमन को, इतनी लालची वुमन को देख के उनको गुस्सा आ गया। प्रोवोक मतलब बढ़ाना, तो सेंट को गुस्सा दिला दिया उसने, वो वुमन ने सेंट को गुस्सा दिला ही दिया, एक साधु को गुस्सा दिला दिया उसने। एंड ही सेड, यू आर फार टू फुलिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म। सेंट पीटर ने बोला कि आप बहुत ही बेवकूफ हो और बहुत ही सेल्फिश हो, लालची हो आप। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप इंसान के रूप में नहीं रह सकते, आप बहुत ही सेल्फिश हो, आप इंसान के रूप में नहीं रह सकते, आपको खाना और शेल्टर, फायर, ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए। यू आर फार टू सेल्फिश एंड टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। इंसान को ये सब चीजें मिलती हैं, आपको नहीं मिलनी चाहिए, आप बहुत ही सेल्फिश हैं। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food, but by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब आप अपना माल, अपना काम खुद करेंगे, जैसे बर्ड्स करते हैं वैसे ही आप करेंगे। Now you shall build as the birds do, जैसे बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ना बेटा, वैसे ही आप अपना नेस्ट बनाएंगे और आपको खाना जो है स्कैंटी, स्कैंटी मतलब बहुत ही कम मिलेगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, आपको खाना कैसे मिलेगा? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। वुड में पिंच करते 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 वुड पैकर वहां से कीड़े खाता है, राइट? तो आप दिन भर बोरिंग करते रहेंगे, बोरिंग 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 मतलब वुड के अंदर खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, और फिर आपको खाना मिलेगा। पूरे दिन ड्राई वुड पे आप, हार्ड वुड पे आप खोदते रहेंगे, ठीक है, और फिर आपको खाना
मिलेगा और आप बर्ड के जैसे नेस्ट बनाएंगे। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। तो वो शी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी के अंदर से पास हुई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ भी बोला नहीं, और बाहर से निकला कौन? वुडपेकर। वुडपेकर एक ऐसा बर्ड होता है, ठीक है, जो वुड के अंदर पिंच करते 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 खाना ढूंढता है। तो वुडपेकर बन गई थी वो। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वो जो लेडी थी वो हो गई थी बर्ड में कन्वर्ट। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पे वो ठंड वाली जो कैप होती है ना, आप वो कैप पहनते हैं इतनी, वो ठंड वाली जो स्कारलेट कैप होती थी उसके सिर पे रही। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो बर्ड के सिर पे भी रही छोटी सी कैप, ठीक है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसके सारे कपड़े लेकिन जल गए थे, ठीक है। जो नीचे भट्टी की जो आग थी, चिमनी की जो आग थी, उसमें सारे कपड़े जल गए, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, हर कंट्री के स्कूल बॉय ने या किसी भी सारे लोगों ने उनको वुड में, वुड मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में, कहीं पे भी देखा होगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज के दिन तक, टिल दिस वेरी डे शी लिव्स इन द ट्रीज, ट्रीज में वो रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खोदती रहती है ट्रीज के अंदर खाने के लिए। फीब कैरी, ठीक है। A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are a part of folk culture and popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. Ballad क्या होता है बेटा? एक ऐसी स्टोरी बताने का तरीका जो छोटे छोटे स्टैंजाज में हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हो। बलाड जो है वो फोक कल्चर है, पॉपुलर कल्चर की बात कर रहे हैं और ओरली पास होते हैं ये, ठीक है। इसलिए शुरुआत में आप देख सकते हैं कि पोएट ने ऐसा बोला था कि आपको शायद पता होगा, राइट। इफ आई टेल द टेल टू यू आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे यकीन नहीं है लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, राइट। तो ये बोलने से ही फैलता है, बोलता है, सब बोल के ये पास होता था जनरेशन से जनरेशन, ठीक है। ओके, चलिए थिंकिंग अबाउट द पोएम पे आते हैं भाई। और कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं? बस कहीं थोड़े ही हैं। लेट अस सी, which country or countries do you think the Northland refers to? कंट्री, कौन सी कंट्री या कंट्रीज के बारे में बात की है नॉर्थलैंड में? तो ये आप गई आपके पास पीडीएफ। द नॉर्थलैंड could refer to an extremely cold country in the earth's north polar region such as Greenland, Russia, Canada, Norway. नॉर्थलैंड कोई भी हो सकता है, ग्रीनलैंड हो सकता है, रशिया हो सकता है, कनाडा, जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्री हो, जिसमें बहुत ही ठंडी पड़ती हो, ठीक है, और अर्थ के जो नॉर्थ पोल है उसके नजदीक वो कंट्रीज होंगे, इसलिए नॉर्थ लैंड बोला है। नंबर 2, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? सेंट पीटर ने क्या पूछा था ओल्ड लेडी को, मतलब क्या मांगा था ओल्ड लेडी के पास से? लेडी का रिएक्शन क्या था? चलिए देखते हैं। Saint Peter asked the old lady for one of her baked cakes to satisfy his hunger. सेंट पीटर ने वो ओल्ड लेडी को क्या पूछा था बेटा? आस्क फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर, उसकी भूख जो है उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको संतुष्टि मिले, इसके लिए उसने एक बेक्ड केक मांगी वो ओल्ड लेडी के पास से। द लेडी ट्राइड टू बेक अ स्मॉल केक फॉर द सेंट, वो साधु के लिए, वो सेंट के लिए एक छोटी सी केक बनाने का प्रयास वो लेडी ने किया। नंबर 3, हाउ डिड ही पनिश हर? He punished the lady by changing her into a woodpecker that built as birds do and gathered scanty food by boring in the hard dry wood all day long. तो सेंट पीटर ने वो लेडी को पनिश कैसे किया? बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुडपेकर, वुडपेकर में बदल दिया उसको। दैट बिल्ड एज द बर्ड्स डू, वुडपेकर क्या करता था? बर्ड्स जैसे बनाते हैं घोंसला, वैसे ही वो नेस्ट बनाएंगी, बराबर। एंड गैदर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग, एंड स्कैंटी फूड, स्कैंटी फूड मतलब थोड़ा कुछ खाना पाने के लिए उसको हार्ड और ड्राई वुड में
कंटिन्यूसली पूरे दिन बोरिंग करना पड़ता था, ठोक 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 करता, मतलब वो अंदर पिंच 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 करके खोदती थी झाड़ को और वहां से खाना उसको मिलता था। तो ये पनिशमेंट सेंट पीटर ने लेडी को दी। चलिए नंबर 4, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? द वुडपेकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग होल्स इनटू ट्रीज। ट्रीज में होल्स करके खाना वुडपेकर को मिलता है। नंबर 5, do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? क्या आपको लगता है कि वो ओल्ड लेडी जितनी अनजनरस उसने बिहेवियर किया सेंट पीटर के साथ, अगर वो जानती कि सेंट पीटर भगवान है तो क्या वो वही सेम चीज करती या नहीं तो क्या करती? चलिए देखते हैं। No, the old lady would not have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was. नहीं, ओल्ड लेडी जो है वो इतनी अनजनरस नहीं होती अगर उसको पता होता कि सेंट पीटर कौन था रियली में। Instead, she would have tried to please him with her cakes for the fulfillment of her greedy desires. Instead, वो क्या करती? उसको अगर पता होता कि सेंट पीटर भगवान है, ठीक है, तो वो ट्राई करती सेंट पीटर को प्लीज करने का, उनको मनाने का, ठीक है, वो केक्स देके उनको मनाने का ट्राई करती और अपनी जो डिजायर्स हैं वो पूरी करने का ट्राई करती फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ग्रीडी डिजायर। उसकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, लालची लालची इच्छाएं, वो पूरी करने के लिए वो सेंट पीटर को मनाती। ठीक है, चलिए नंबर 6, इज इट अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्या ये सही है स्टोरी? कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है? नो, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट इज अ लेजेंड। ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ये एक लेजेंड है, मतलब बहुत मानी जाती है ये जो स्टोरी है ये, लेकिन वो सही स्टोरी नहीं है। I feel that the point in the story where the old lady is changed into a woodpecker is the most important. This is because the punishment meted out to the lady teaches us the value of generosity and charity. तो वो एक ऐसा स्टोरी में एक ऐसा पॉइंट था जहां पे ओल्ड लेडी जो थी वो वुड पैकर में चेंज हो गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पनिशमेंट जो है वो लेडी को मिली, वो हमको ये सिखाती है कि जनरस होना चाहिए और चैरिटेबल होना चाहिए। जनरस मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेवियर करना चाहिए आपको लोगों के साथ, और गरीब है तो उनकी मदद करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। जिसको कुछ चाहिए तो अगर आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए। ठीक है, नंबर 7 देख लेते हैं हम। लेजेंड क्या होता है? ये पोएम को लेजेंड क्यों बोला गया है? A legend is a popular story from the past which is believed by many but one cannot prove whether it is true or not. एक लेजेंड एक ऐसी स्टोरी होती है जो बहुत ही पहले हुई होती और सब लोग मानते हैं कि ये सही होती है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाते हैं कि सही है कि नहीं है। ये स्टोरी सब लोग मानते हैं, बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, इट यूजुअली कंटेन्स अ मैसेज और अ मोरल एंड इज नरेटेड टू चिल्ड्रन। और लेजेंड ऐसी स्टोरीज होती हैं जो यूजुअली एक मैसेज होता है, उसके अंदर एक मोरल आइडिया होता है जिससे आपको सीख मिलती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन को नरेट ये किया जाता है, राइट? द पोएट हिमसेल्फ सेज दैट ही डजंट बिलीव दिस टेल टू बी ट्रू। द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट खुद बोल रहा है भाई कि ये पोएम जो है वो सही नहीं है। अच्छा, हिम लिखा है, ओके, पोएट बॉय है भाई, मुझे फीब से लगा कि वो गर्ल है। चलिए ठीक है। The poet said that himself he doesn't believe this tale to be true. सही नहीं है, पोएट को वैसे उसको ही लगा। The poem is called a legend because it preaches generosity towards fellow beings. ये जो पोएम है वो लेजेंड कही गई है क्योंकि ये हमको दया भाव सिखाती है, ठीक है, हमारे इंसानों के लिए। चलिए नंबर 8 देखते हैं। राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड अबाउट 10 सेंटेंसेस। भाई लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की स्टोरी जो है वो 10 सेंटेंसेस में लिखिए। स्टोरी लिखते हैं। Once Saint Peter stopped by an old lady's cottage because he was feeling hungry and weak after the day's fasting. The lady was baking cakes on the hearth. Since he was weak with fasting, he asked her for a cake from her store of cakes. The selfish lady tried to bake small cakes, but each time they seemed too big for her to give away. Finally, she baked one that was as thin as a wafer. Unable to part with it too,
She put it on a shelf and did not give any cake to the saint. Saint Peter was very angry with her behavior and said she was too selfish to live as a human and have food, shelter, and fire to keep her warm. He punished her by changing her into a woodpecker that would have to build a nest to live in, bore for food in the trunks of trees. Her clothes were burned and she was left with a scarlet cap on her head, and she flew out through the chimney. Even today, she still lives in the woods and is seen by all the country schoolboys. ऐसे आप स्टोरी लिख सकते हैं, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा. चलिए राइमिंग की बात करते हैं. लेट्स लुक एट द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ लाइन. स्नो, क्लोज टू, यू, बिलो, नो. हमको पता चलता है कि भी स्नो जो है वो क्लोज के साथ राइम होता है, ट्रू जो है वो यू के साथ, बिलो जो है वो नो के साथ. ऐसे राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. द राइमिंग वर्ड्स आर फ्यू, थ्रू, अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, वन, डन, फ्लैट, दैट, माइसेल्फ, शेल्फ, पेंट, सेंट, फॉर्म, वॉर्म, फूड, वुड, वर्ड, बर्ड, सेम, फ्लेम, वुड, फूड. ये सारे हैं राइमिंग वर्ड्स. ऐसे लेजेंड्स आपको ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है. जैसे ऐसी स्टोरी है जो प्रूव नहीं कर सकते हैं लेकिन स्टोरी होती है जिससे आपको सीख मिलती है. तो ऐसी एक स्टोरी हमारे पीडीएफ में आई है और थोड़ा टाइम भी है हमारे पास, चलिए देखते हैं. Echo was a nymph who talked too much. She was very fond of having the last word. Echo एक ऐसी लड़की थी जो बहुत बात करती थी. उसको बस आखिर में बोलना बहुत पसंद था. बोलना ही चाहिए उसको. अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो सामने कुछ ना कुछ तो बोलेगी. One day she spoke rudely to the great Juno, who said that for his offense, Echo should never use her voice again unless to repeat what she had just heard. But since she was very fond of last words, she might repeat the last word of others. एक दिन उसने जूनो, बहुत बड़े कोई भगवान जैसा कुछ था, आई डोंट नो जूनो कौन है. जूनो एक्चुअली कोई भगवान का नाम था. तो उनके साथ रूडली बात की. तो ये गलती उसने की. तो भगवान ने बोला कि इको शुड नेवर यूज हर वॉइस अगेन. इको फिर से अपनी वॉइस नहीं यूज कर पाएगी अनलेस टू रिपीट व्हाट शी हैड जस्ट हर्ड. उसने जो सुना है वो रिपीट करने के लिए वो अपना वॉइस यूज कर सकती है. बट फिर भी उसको लास्ट वर्ड बहुत पसंद है. शी माइट रिपीट द लास्ट वर्ड ऑफ अदर्स. तो दूसरे के जो लास्ट वर्ड है वो रिपीट कर सकती है वो. This was almost as bad as if Juno had changed her into a parrot. Echo was very much ashamed and hid herself in the forest. भाई जूनो को ठीक है, जूनो ने जो किया उससे ऐसा लगा कि वो उसको इको को पैरट में उसने चेंज कर दिया है. इको बहुत ही शर्म में आ गई थी और फॉरेस्ट में खो गई. नार्सिसस अ यंग मैन. अच्छा ये एक और स्टोरी है, देखिए बेटा. अच्छा नहीं, सेम है. Narcissus, a young man who had hair as yellow as gold and eyes as blue as the sky, a very rare thing in Greece, where most people were very dark, used to hunt in the forest where Eco was hiding. Narcissus एक young man जिसके बाल येलो कलर के थे, ठीक है, और आंखें स्काई जैसी ब्लू कलर की थी. गोल्ड जैसी आंखें थी और गोल्ड जैसे बाल थे और स्काई जैसी ब्लू आंखें थी. ग्रीस में बहुत ही रेयर है. ग्रीस की स्टोरी है जहाँ पे मोस्ट पीपल डार्क हुआ करते थे, डार्क स्किन हुआ करती थी, ठीक है, डार्क हुआ करते थे. फॉरेस्ट में वो हंटिंग के लिए गया जहाँ पे इको छुपी हुई थी. एज शी वॉज पीपिंग आउट शाइली फ्रॉम सम केव और फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेट ट्री, इको ऑफन सॉ नार्सिसस एंड शी एडमायर्ड हिम वेरी मच. तो वो बहुत ही छुप छुप के क्या करती थी, वो केव से देखती थी या ट्री से देखती थी नार्सिसस को, ठीक है. तो इको को नार्सिसस बहुत पसंद था. One day Narcissus became separated from his friends and hearing something rustle among the leaves, he called out, "Who's here?" "Here," answered Echo. Narcissus अपने फ्रेंड से अलग हो गए, ठीक है, और लीव्स में हलचल उसको महसूस हुई तो उसने बोला, कौन है यहाँ पे? तो इको ने बोला, "Here." "Here I am." "Come," Narcissus ने बोला. "I am come," इको ने बोला. And as she spoke, she came out from among the trees. तो जैसे ही वो बोली वो ट्री से बाहर आई. When Narcissus saw a stranger instead of one of his friends,
as he had expected, he looked surprised and walked quickly away. बराबर, जब नार्सिसस ने एक स्ट्रेंजर को देखा, फ्रेंड्स की जगह पे उसने एक स्ट्रेंजर को देखा, ठीक है, तो वो सरप्राइज हो गया और दूर चला गया, भाग गया. After this, Echo never came out and allowed herself to be seen again, and in time she faded away till she only became a voice. This voice was heard for many, many years in forests and among mountains, and particularly in caves. In their solitary walks, hunters often heard it. Sometimes it mocked the barking of the dogs, sometimes it repeated their own last words. It always had a weird and mournful sound and seemed to make lonely places more lonely still. तो इको फिर कभी बाहर नहीं आई, ठीक है, और वो खाली एक आवाज बन के रह गई. ये आवाज आज भी आपको सुनाई देती है फॉरेस्ट में या केव्स में, ठीक है, जहाँ पे हंटर्स ऑफन जाते हैं तो हंटर्स सुनते हैं. डॉग्स की आवाज वो निकालती है. इट मॉक द बार्किंग ऑफ द डॉग्स, मतलब डॉग्स जब बार्क करते हैं तो उसकी आवाज वो कॉपी करती है, ठीक है, अपने लास्ट वर्ड्स भी रिपीट करती है कभी. और ऐसी जो साउंड है वो ऐसी अकेली जगहों पे और अकेला महसूस करवाते हैं. इको, इको मतलब पड़घा बोलते हैं उसको, गुजराती में पड़घा पड़ता है ना, जो इको आता है, बोलते हैं और सामने से वापस आपका जो वॉइस आता है, उसकी ये स्टोरी है. ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा, आपके होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा. ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.